Oops, that's a fire question and it's gonna hit home for so many people nowadays. My friends in-laws, like मेरी दोस्त के in-laws को पता था, they knew their son was gay and still got him married to my friend. She needed advice and support. Okay, so I mean that's a betrayal. अगर उसको if the parents knew and उन्होंने उसकी लड़के की शादी करा दी है, then that's, I mean, I feel bad for the girl, but I also feel bad for the boy because दोनों की life is ruined now, right? Because I guess parents ने तो parents always know, right? They know, or you have a hint or something. Somebody knows something, but the fact that especially जो माएँ होती हैं ना, उनको अपने बेटे का बिल्कुल सही से पता होता है where he's going, उसका track क्या है. I know, but again, maybe they forced the son. Maybe they forced him, and they said, you know, ye kar do, and then once we have our grandchildren or whatever, then you can. That, you know, like maybe that's all they cared about, but they didn't care about the girl. हमारा ये ख्याल होता है कि ये चीजें अब हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हम नहीं करती हैं. I personally know a couple of people that went through this. उन लोगों का पेरेंट्स का ये ख्याल होता है बच्चा खराब है, ब्याह कर दो सीधा हो जाएगा. अच्छा, मियाँ बीवी खुश नहीं है, बच्चा कर लो ठीक हो जाएंगे. ठीक है, तो आगे से आगे मसलों में मसले ऐड करते जाते हैं बजाय इसके कि एग्जिस्टिंग मसले को हल करें. तो इस तरह के केसेस में भी यही होता है कि अच्छा अगर उन्हें लग रहा है कि ये ऑफ द ट्रैक जा रहा है बच्चा तो इसकी शादी कर लो, ये ठीक हो जाएगा. ऐसे नहीं होता. बिकॉज वो लड़का भी मिजरेबल रहेगा पूरी लाइफ और उस लड़की की भी आपने लाइफ तो खराब कर दी है ना. बिकॉज शी इज नेवर गोना हैव दैट इंटीमेट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड दैट बिकॉज शी इज नॉट व्हाट ही वांट्स. सो आप लोगों ने दिस इज एक्चुअली अ गुनाह आई थिंक कि आपने अपने एक लड़की की लाइफ खराब कर दी. आपको पता था क्यों किया आपने ऐसा. सो यस, इट्स अ बिट्रेयल. इट्स शी नीड्स टू टेल हर पेरेंट्स. इफ हर पेरेंट्स नो दे नीड टू कन्फ्रंट हिज पेरेंट्स. इस तरह की बातें अगर अंडरलाइंग इस तरह आप रखते जाते हैं इश्यूज को तो ये और सोशल प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट करती है. उसको कन्फ्रंट करें एंड टॉक अबाउट इट. बी लाइक आपका जो अपने बच्चे के साथ इफ यू हैव एन इशू विद योर सन दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मी. Do not, you dragged my life into this, so she needs to find a way out of this. मेरे ख्याल में confront करना और इस situation से बाहर निकलना is the first and foremost step होना चाहिए. Because ये temporary चीज नहीं होती कि ये ठीक हो जाएगी or this and that. This is somebody. It keeps coming back until अगर आपको लगता है कि it's a mental issue other than the physical and both issue. of you will be miserable. It should be addressed. आपको मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, and you need to sort it out. And same thing for the guy. The guy is suffering too because उस बेचारे, like he is also being forced in a relationship he doesn't want to be in. और मैं वैसे अगर मैं ये कहती हूँ कि हम जब किसी लड़के की शादी होने वाली होती है और उसको ऐसे प्रॉब्लम्स हो या किसी लड़की की और वो कोई शादी नहीं करना चाहती है तो मेरे ख्याल में you guys need to step up and don't do it. And I'm sure other people knew too. Like community में किसी को तो पता होगा ना जिस तरह की शादियाँ तो नहीं in the dark हो जाती. So this is a whole community issue. अगर आपको पता है कि somebody is not interested in women or men, then you let the other person that's being involved in that marriage know. This is a time to snitch actually. Yeah, that's plain mean. अगर पेरेंट्स की बात की जाए लड़के की तो I mean क्योंकि अगर वो बच्चे हो भी गए तो बच्चे you're gonna have to explain this to the kids one day. Imagine करोगे उनके बच्चे हो भी गए because कई लोगों के I know many people that have double lives. Right? उनके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, and then they are also, that's not the life they are happy with, so they want another lifestyle, but then it's not fair. And imagine करो कि उनके बच्चे हो जाएं and then when the kids grow up they find out. And that's happening a lot these days. I get a lot of messages like this from girls that they are having the same problem because their husbands are not faithful. They are going with other guys out and they keep finding it out. They are just struggling with their life emotionally, बच्चों के साथ भी, and then financially as well. So, I mean, just be so parents need to be strong yourself, and they need to deal with their issues that they have with their kids before they drag another child, somebody else's child, into that. They are just keep adding problems to the current existing and I wish issue. her good luck because that is sounds like a tough sounds very tough. I would advise कि आप इसके ऊपर सबसे पहले जो है confront करें and get out of this situation. And I wish the guy had was stronger to stand up to his parents also and say that I don't want to. हमारे एक तो social dynamics भी इतने अजीब से हो जाते हैं लड़कियों के लिए कि बाज़ों का तो ऐसी जगह इस तरह शादियाँ उनकी हो जाती हैं कि दोबारा वो बेचारी निकल ही नहीं सकती, उनको अपने ही पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं होती.
So be like truthful, tell your parents. बिकॉज वो अपने पेरेंट्स को भी कैसे बताए, राइट? वो बताएगी तो वो कहेंगे तेनू कैसे, हाउ डू यू नो? हाँ, और लोगों का लगता है कि ये जो इंटीमेसी होती है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको पता है पेरेंट्स आपके क्या कहते हैं आगे से होते? मारदा ते नहीं था तेनू, शराब खाने ते तो नहीं दे पीता। रहे हैं ना, शराब नहीं पीता, मारदा ते नहीं, तो आर यू वेटिंग फॉर दिस टू हैपन कि पहले मैं कुट खाऊं, शराब पी गया है, मुझे मारे? मतलब कि तो फिर उसके स्टैंडर्ड्स बाद मैं इतने लो निकलूंगी। हैं कि अगर वो बेसिक आप चीजें मीट कर रहे हो देन जस्ट पुट अप विद एवरीथिंग। कि ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਕਰਦਾ। हाँ ਤੈਨੂੰ कंजूस तो नहीं है, कंजूस। हाँ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ है, आण देता है, मतलब ये वाली चीजें तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और अगर आप इन बातों की कंप्लेन करना शुरू कर देना, लोगों सामने लगता है हाँ कि बेशरम है, इनू है चाहिए। बट आहो चाहिए वही वाली बात जो आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, वो कह रहा था कि जो ये चीज होती है, मेरा एक दोस्त कहता था नहीं 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 मेरे अम्मी अब्बू तो बड़े शरीफ है, वो कुछ नहीं No, करते। it's intimacy is like the most important thing in a marriage, जो हमारे religion में भी है। This is हमारे religion में भी ये चीज है कि both partners have to be satisfied। अच्छा, मुझे एक चीज इतनी अजीब लगती है, हमारे लोगों की हिपोक्रेसी है कि इतना आम सवाल है ये कि वलीमा साडा हलाल है कि नहीं, अभी हराम ते नहीं खा रहे हैं। ये बहुत आम सवाल है जो लोग करते मतलब हैं कि लाइक रात को कुछ हुआ है, मतलब शादी हलाल हो गई है आपकी, जो हम ये वलीमा अभी खा रहे हैं। कॉन्सेप्ट कि नहीं हलाल होता कि हराम हाँ, तो ये सवाल पूछते हुए नहीं शर्म आती, लेकिन बाकी सारी बातें जो हैं वो करते हुए लड़की अगर कंप्लेन कर रही है, कुछ कर रही है, तो बड़ी बेशरम है। सो आई मीन, But anyways, you could also say कि religiously ये शादी नहीं है because you have to be intimacy is very important in Islam, and you have to be satisfied with that intimacy. so I would advise कि confront it and get out of this relationship because it will create further more problem अगर आप इसको delay करते जाएंगे। And good luck. Yeah, and I'm feeling very sorry.